Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine. Today I am going to teach you the fourth tense, present continuous tense. And I will change the whole tense, whether that is simple, negative, interrogative, formal and informal, from active voice into passive voice. One by one I will make you understand. Let's move. How to change the present continuous tense from active voice into passive voice? First we have to know the verbs. Which one form of the verbs will be used here? Whether that is first, second, third or ing. In all continuous tenses, जहाँ पे continuous का नाम आ जाए वहाँ पे हम लोगों ने first form of the verb with ing का इस्तेमाल करना है. So here we will use what? First form of the verb with ing. First form of the verb with ing. So how can we use, which form of the verb can be used in passive voice? In all passive sentences, we use third form of the verb. After that, in present continuous tense, helping verb is used is, are and am. Is कहाँ पे इस्तेमाल होता है? Is will be used with he, she, it and singular noun. Are will be used with we, they, you and plural noun. I only used or can be used with I. So here helping verb in passive voice of the present continuous tense will be is being, are being and am being. After helping verb, we will talk about the simple formula of the present continuous tense and we will change into passive voice. If we know formula, then sentence will be very easy for us. So let's move. Subject plus helping verb plus first form of the verb with ing plus object plus full stop. So according to formula, we will make sentence. Subject she, with we use is, then first form of the verb with ing, she is cooking food. She is cooking food. वो खाना पका रही है या बना रही है. तो how can we change from active voice into passive voice? First we have to make the formula. Object, helping verb, third form of the verb, plus by plus subject plus full stop. ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? फूड है. तो फूड उसके साथ is being. Food is being. Then third form of the verb of cooking is cooked. Then we use by. After that subject will change into object. यहाँ पे हमारे पास subject क्या है? she है. तो she का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास? her. Food is being cooked by her. खुराक या खाना उसके जरिए बनाया जा रहा है या पकाया जा रहा है. तो ये रही हमारे पास सिंपल सेंटेंस. उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करनी है. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले हम लोगों ने इसकी फार्मूला लिखना है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब plus not plus first form with ing plus object plus full stop. How can we make sentence? इसकी बजाय हम लोग ही लिखते हैं. He is not playing football. He is not playing football. वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है. He is not
प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट वी हैव टू मेक द फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, फिर नॉट के बाद हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है? बीइंग। जैसे हमारे पास इज बीइंग है, इन दोनों को नेगेटिव में हम लोगों ने अलग करना है। ऑब्जेक्ट फिर इज या आर या फिर एम, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। अब इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट फुटबॉल इज, फिर उसके बाद नॉट लिखना है, इज नॉट प्लेड बाय हिम। तो ये रही हमारे पास सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ दो सेंटेंसेस पढ़ने हैं, इंट्रोगेटिव एंड फॉर्मल सेंटेंसेस। सो लेट्स मूव। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बना सकते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लोगों ने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेंटेंस पहले या आर लगाते हैं। चलो आर लगाएंगे यहां पे। आर वी स्पीकिंग अरबिक? आर वी स्पीकिंग अरबिक? क्या हम अरबी बोल रहे हैं? अब इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं? पहले हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखना है, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला यहां पे हम लोग इज, आर, एम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद बाय, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि अरबिक एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इज अरबिक बीइंग स्पीकिंग, यानी ये इसका एनजी फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म स्पीक का क्या है? स्पोकन। फिर उसके बाद बाय। अब मैं बता चुका हूं कि वी चेंज इट टू अस, ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इज अरबिक बीइंग स्पोकन बाय अस। फिर उसके बाद हमारे पास है फॉर्मल फार्मूला। फॉर्मल फार्मूला में हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है? लफ्ज नॉट की एडिशन करना है। यही फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाए तो हमारे पास फॉर्मल फार्मूला बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
plus first form of the verb with ing plus object plus क्वेश्चन मार्क. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं. आई टोल्ड यू दैट कि हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म वर्ब जो भी हो सही है उसका इस्तेमाल कैसे करनी है. हेल्पिंग वर्ब, चलो इस दफा एम लगाएंगे. एम आई नॉट cleaning the room. Am I not cleaning the room? So how can we change this sentence from active voice into passive voice? Before this, I'm going to tell you formula. ऐसे ही फॉर्मूला जैसे इंट्रोगेटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने क्या लिखना है. नॉट के बाद फिर बीइंग लिखना है. इज है हमारे पास, आर है, फिर एम है, फिर सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, फिर हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क. अब द रूम मीन्स हमारे पास एक ही रूम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने इसका सिलेक्शन की. इज रूम नॉट बीइंग क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या है, क्लीन बाय. मी है, आई विल चेंज इट टू मी. इज रूम नॉट बीइंग क्लीन बाय मी. सो ये रही हमारे पास आज की जो टॉपिक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और फॉर्मल. इसके बाद लास्ट है हमारे पास इनफॉर्मल मीन्स गैर अदबी, गैर रस्मी. वी नो बेटर देन कि हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज. उसमें हम लोगों ने क्या करना है, इज और नॉट को इकट्ठा करके फिर लिखते हैं इजंट. आर और नॉट को इकट्ठा लिखते हैं आरंट. एम और नॉट को इकट्ठा लिख के फिर एंट. मीनिंग वही दे रहा है, चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, मीनिंग सेम है, लेकिन जुबान में फर्क है, लैंग्वेज में फर्क है. एक फॉर्मल है और दूसरा इनफॉर्मल है. सो होप दैट आज को जो लेक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये चौथा टेंस है. ओनली वी कैन चेंज 8 टेंसेस. 12 है मुकम्मल, लेकिन हम लोगों ने 8 चेंज करने हैं. वो 4 क्यों चेंज नहीं कर सकते वो भाई मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. सो होप दैट आप लोगों को समझ आएगा. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी.